One step at a time, I find my way through valleys of flowers, fresh mountain showers. With magical powers, I find my way. One step at a time, I walk my path in trust and surrender, through sunshine and thunder. With eyes full of wonder, I walk my path. One step at a time, I find my way. One step at a time, I find my way. Good morning. How beautiful this morning is. Another beautiful day. From sunset to sunrise. Oh, look at those snow-capped mountains and coffee in my hands. This for me is paradise. One thing you can't miss in the mountains are the mornings. They are absolutely magical. I got up really early to catch them. Though it was a little cloudy, it was still stunning. Now let's see what the day has in store for us. I love you, re Mari Sabah. I love you, re Mari Sabah. Love you, re love you. I love you, re Mari Sabah. I love you, re Mari Sabah. I love you, re love you. I love you, re Mari Sabah. That was the perfect song for my morning. Kharakhar, the Sawar is something else. And village life, koi divas dhairu no tu. Village life is like this. It's so simple, so pretty, so fresh, and so beautiful. I am in paradise. Just look at that. I mean, you just can't imagine. This beauty you have to see. કેટલું પણ તમે જોશો તમને એવું લાગે કે જોયા જ કરીએ ને ગમે એટલા ફોટો પાડો જે તમે આંખેથી જોશો nothing can beat that. अपने सुबह के एक्साइटमेंट में मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि हम लोग हैं कहाँ. हम लोग पालमपुर में हैं और पालमपुर का नाम पड़ा है पालम से, which means lots of water. So this city has water coming down from the mountains, and that is why the name. Flowers or some orange flowers with glitches. Oh, I love this breeze. It's so refreshing. Nice.
I'll show you the markets and all that over here also as we are passing through. अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मॉनेस्ट्री दिखाने वाली हूँ। ये देखो पहुंच गए। इसका नाम है मनी डुंगजुर। लेट्स एक्सप्लोर। इसके अंदर अगर हम जाकर के वो घुमाते उसको क्या बोलते हैं आप? उसको टिबेटन से मानी बोलते हैं। मनी मानी। डोंगजुर। अच्छा, मानी डोंगजुर। मानी डोंगजुर। अच्छा, क्योंकि वो हमारे पास ऐसा छोटा वाला है, वो नेपाल से लिया था हमने, तो मुझे पता है उसके बारे में थोड़ा कि उसको ऐसे घुमाना होता है। बट ये 108 स्तूपा अपने छोटे वाले और बड़े 8 स्तूपा है ना? अच्छा, और ये फ्लैग्स में क्या लिखा हुआ होता है? फ्लैग्स में आपका ये पूरा नजर से बचाएगा। अच्छा, इसके बारे में। तो ये कलर्स उसके कुछ सिग्निफिकेंस रखते हैं? 5 कलर है। अच्छा, ये 5 होते हैं। हाँ, ये 5 कलर। इसका क्या मतलब है 5 का? ब्लू, एलिमेंट 5 एलिमेंट। हाँ 5 एलिमेंट्स। ओके, वाटर, फायर, वाटर, एयर। फायर। हाँ, ओके ओके। 5 एलिमेंट्स। हाँ, हम लोग ऐसे मानते हैं। ऊपर वाला चाहिए स्काई, ब्लू स्काई, व्हाइट का वाटर, वाटर, और रेड वाला फायर, फायर, और ग्रीन वाला अर्थ, अर्थ अर्थ वाला नहीं, अर्थ वाला नीचे वाला is yellow. Okay. येलो वाला। So the green is for the green trees is- and the या plants. ट्री। Ah, okay. और इसमें डिफरेंट मंत्र देखो। Mantra. Yeah. Okay, yeah, the mantras are written. So y'all are the students or y'all are teaching here or what? Teaching. We are teaching. You are teaching. Yeah. So there is a school also inside. We are learning Buddhist philosophy. Buddhist college। Philosophy and Buddhist mind, science. Well, beautiful. Okay, thank you. Thank you. Nice. I feel so nice and rejuvenated thinking about Buddha and thinking about all this beautiful place. It's got these 8 white stupas and small 100 stupas, and there are a lot of Buddhist monks here. And it's a very pretty place. We just come here and I think we are going to pass by it, so I can show you how it is. We are in Beer Billing. This is one of the most popular sites for paragliding. So I thought I would do it today, but it's really, really cold, very windy. The sun is not out at all today,
So probably I'll give this a miss this time, but do it another time because I'm sure to come back here. This is a beautiful place. This is the landing place, which is called Beer, and Billing is right up there. As you can see, it's at a height, and I believe this distance which these paragliders cover is about 19 kilometers. But we'll talk to one of the paragliders, so we'll know more about this. We are meeting Navish, who's a paraglider, and he's going to tell us something more. Hi, Navish. Hello. Are you from this place? Yeah. So, do you paraglide very often? Yeah. How often do you do it? From 6 years I'm doing this. Okay. Yeah. And is there a season you would do it, or you would do it just any time? Anytime. Anytime. Okay. So, are you certified and all that, or? Yes. Okay. So, are you also a trainer यहाँ पर? Yeah. आप ट्रेनिंग भी देते Yeah. हैं? ओके. और रेगुलर कुछ क्लासेस चलते हैं कि जब भी सीजन होती है तब भी आप लोग थोड़े टाइम पहले सिखा करके फिर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ. अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो 3 साल आपको लगते हैं। अपने शौक के लिए सीख रहे हो तो हफ्ते 2 हफ्तों में आप अकेले फ्लाई कर लेते हो। अच्छा. अच्छा. Okay, this joystick. Feeling hungry in this weather. Lunchtime. Gliders Pizzeria. Wood-fired pizzas. Let's go in. Interesting. आप यहाँ के शेफ है? अरे वाह! यहाँ मीटिंग शेफ, आपका नाम क्या है? सोमा. We are meeting Chef Soma, who makes wood-fired pizzas. और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? कौन सा वाला? बारबेक्यू चिकन. बारबेक्यू चिकन. और वेज में मैं तो वेज खाती हूँ. वेज में पनीर मिल जाएगा, मशरूम नहीं खाती. पनीर मिल जाएगा. अच्छा. ओवरजील मिल जाएगा. अच्छा. चलो बैठते हैं. लेट्स गो. ठीक है मैडम, पनीर वाला बना दीजिए. इसमें और भी आएगा ना? ऑलिव्स, टोमेटो, हाँ, सभी आएगी मैम. सब वेजिटेबल्स आ जाएगा ना? Tea is one of the most popular beverage. और हम जब चाय पीते हैं तो कभी सोचते ही नहीं है कि उसके पीछे का प्रोसेस क्या है. आज हम देखते हैं चाय की पत्तियां बनती कैसे हैं. You didn't play the music. Hello, मैं हूँ चाय के बागान में, and this is in Himachal, not in Assam, and we are in district Kangra. तो अब हम जाएंगे ये टी फैक्ट्री देखने जिसका नाम है हिमालयन ब्रू, और ये फॉरेनर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है. So let's hear about more in District Kangra Himalayan Brew. वो smell of tea. चाय की पत्ती में चाय की सुगंध रही है. अरे इनसे पूछते हैं. हेलो, नमस्ते. आप हमें इस बागान के बारे में कुछ बताएंगे? मैंने अभी इसको कुछ स्मेल किया पर कोई चाय की खुशबू आ नहीं रही है. एक्चुअली ये इस टाइम ये चल रहा है ऑफ सीजन. अच्छा. तो इस सीजन में प्लकिंग होता है तो आपको वो नेचुरल फ्लेवर नहीं मिलेगा. ओके. इसका जो प्लकिंग का जो टाइम पीरियड रहता है वो आपका टाइम पीरियड मार्च मिड से स्टार्ट हो जाएगा, देन 31 अक्टूबर तक कंटिन्यूस चलेगा. ओके. देन आजकल क्या है कि जैसे ये रेस्टिंग पीरियड में जो गार्डन्स की मेंटेनेंस वगैरह होती है. ये रेस्टिंग पीरियड है. ये ये resting- सब अच्छा, ये सब अभी रेस्ट कर रहे हैं. रेस्टिंग पीरियड इन द सेंस मींस कि गार्डन की मेंटेनेंस चल रही है. अच्छा. तो इसकी Okay. प्रॉपर कटिंग होगी, और इसकी जो कटिंग रहती है वो इसके जो प्यून्स होते हैं, प्यून सिस्टम होते हैं, जैसे इसकी जो कटिंग होती है वो इसके लेवल के हिसाब से होती है, बुशेस की लाइफ को देख के.
इनसे इनसे कैसी चाय बनती है, मतलब किस किस किस्म की चाय बनती है? हम जो रेगुलर जो पीते हैं वो? नहीं, एक्चुअली ये जो बुशीज हैं इससे ये चाइनीज बुशीज हैं, हाँ। बोलते हैं चाइना बुशीज। इससे बनती है ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी और ग्रीन टी। ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी बनाएंगे या फिर ग्रीन टी बनाएंगे। तो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी मतलब क्या? ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी इन द सेंस मीन्स ब्लैक टी, इट्स प्योर ब्लैक टी। हाँ जैसे उसको सिंपली लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी। हाँ, ओके ओके ओके। और ये पत्ते नहीं है, चाय के पत्ते नहीं है ये वाले? एक्चुअली ये चाय के ही पत्ते हैं, अच्छा। मगर इसमें आपको वो फ्लेवर नहीं मिलेगा। हाँ फ्लेवर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मीन्स एक और इसको बोल सकते हैं आप सिंपली लैंग्वेज में आपको बताऊं तो उसको बोलते हैं आप बूढ़ा पत्ता। अच्छा बूढ़े पत्ते में तो जो जवान बूढ़ा पत्ता हो होगा और उस गया, पत्ते में होगा ओके, तो ओके। उसमें वो मतलब फ्लेवर नहीं आएगा। ओके। तो इसकी जो चाय बनेगी, एक्चुअली इसकी तो चाय बनेगी नहीं। हाँ। जब इसके आप सेल्स ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि देखो अभी ये टूट रहा है, इसमें हाँ। कोई करैक्टर नहीं है। हाँ तो इस वजह से इसकी चाय, और इसके अगर चाय बनाने की कोशिश करेंगे तो सब वो मतलब बहुत कड़वा सा फ्लेवर आएगा। अच्छा तो मीन्स जो भी हम जैसे जिस टाइम चाय बनती है तो सबसे क्या करते हैं हम 2 leaves 1 word वो प्लग करते हैं। ओके, तो वो ऐसे ही उगेंगे? Yes, ma'am. दो पत्तों वाले उगेंगे। एक्चुअली प्लकिंग का बेस्ट पॉसिबल वे बता रहा हूँ। हाँ हाँ। वैसे यहाँ तक कि हम 3 leaf 4 leaf तक उसको प्लगिंग तो कर लेते एक हैं। पॉड में 3 या 4 Four. आएंगे? जो बेस्ट पॉसिबल, जिससे जो सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय बनेगी 2 leaves 1 word की बनेगी। अच्छा, मतलब सही प्रोसीजर है प्लकिंग करने का। देन आपको मैं फैक्ट्री फैक्ट्री के का अंदर देखते हैं। ओके, लेट्स गो। चाय की पत्तियां बनाने का प्रोसेस काफ़ी कमरसम है, पर अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये प्रोसेस सबसे पहले प्लकिंग से तो शुरू होता ही है, देन सॉर्टिंग, उसके बाद आता है मेन प्रोसेसेस जो विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन एंड ड्राइंग कहते हैं उसे, और बाद में इसका पैकिंग किया जाता है। Okay, that was the pure green tea. प्योर ग्रीन टी। Okay, the दिस वन इज next. प्योर ब्लैक टी, फर्स्ट क्लास। This is the premium grade pure black Black tea. Okay, दिस वन इज सिल्वर नीडल, this is silver needle. हाई कॉस्ट। This you're saying is a very high cost tea. 1 lakh rupees per kg। 1 lakh rupees per kg. This is what I'm going to have. तो ये क्यों इतनी महंगी है? एक्चुअली मैम ये बनती है वर्ड्स की। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना प्रोसीजर प्लगिंग हाँ, का, हाँ। 1 word 2 leaves। हाँ। तो उसका जो वर्ड्स होता है उसको प्लग करते हैं। हाँ तो मैनुअली जैसे हमने उसको प्लगिंग करना है 100 लेबर लगा दी, तो मैं एक दिन में उसको लेबर को करेंगे, तो मीन्स वो दिन में 1 या 1.5 kg उसको प्लग कर पाएंगे। अच्छा, देन इसके बाद इसको मूनलाइट में इसको ड्राई करना पड़ता है। मूनलाइट में? मूनलाइट में, सनलाइट में नहीं, ताकि जो इसकी जो मेंस प्रॉपर्टीज है Wow. वो पूरी प्योर रहे इसके अंदर। I saw, I understood, I tasted, and I bought. नमस्ते। हम हमें को क्या लगाए? हाँ जी, क्योंकि अच्छा actually हम अच्छा, ओके। आई पुट दिस फॉर माई सेल्फ। थैंक यू। वेलकम। आपकी होटल का नाम का मीनिंग बताइए। मैम हमारे होटल का नाम अदीबा है। अदीबा मतलब यानी कि एक तरह का पीसफुल इन्वायरमेंट, जैसे कि शांत एक काम एरिया, यही अर्थ है इसका अदीबा का। तो ये लैंग्वेज कौन सा है? हिंदी में बोलते हैं? अदीबा एक शब्द संस्कृत का है। संस्कृत है। बिल्कुल। Okay. Okay. Looking forward. Thank you. Thank you. A great ending to a great day. See you in the next episode.
you.